6 રન વગર વિકેટે શાલોમ ફાઇટર્સ. હજુ એક સારો દડો નાખીને ઓવરની પૂર્ણાહુતિ કરી હતી. પહેલા 3 બોલમાં રન આવ્યા અને પછીના 3 બોલમાં રન માટે ફાંફા મારવા પડ્યા હતા શાલોમ ફાઇટર્સે. 1 ઓવર 6 રન અને પહેલા ઓવરની રમત માટે શું કહેશો નૂરભાઈ? आफ्टर फर्स्ट ओवर द स्कोर इज 6. 6 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त यहाँ पर शालोम फाइटर्स के लिए. देखिए टॉस जीता है भव्य 11 ने और फील्डिंग का फैसला किया है. जो दावत दी गई है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, लेकिन 6 रन प्रति ओवर के औसत से पहला ओवर समाप्त हुआ है. एक से बढ़कर एक बल्लेबाज वैसे शालोम फाइटर्स में भी मौजूद है और एसटीपीएल की इस कहानी में ये दूसरा मैच है इन दोनों टीमों के बीच में. दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीत चुकी है, यानी ये मुकाबला दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. यानी अगर जीत गए तो बिल्कुल 7 तारीख के मुकाबले खेलने पर कोई रोक नहीं लगा सकेगा, ऐसा कह सकते हैं आप. लेकिन हारे तो अगली मैच में फिर मेहनत करनी होगी. નવી ઓવરની શરૂઆત કરવા માટે આવી રહ્યા છે જેનિશ, જેઓએ પહેલી મેચમાં બહુ ઝેરીલી બોલિંગ કરી હતી અને 3 વિકેટ લીધી હતી. એવા જેનિશ મુસ્તફાએ ડ્રાઈવ કર્યું હતું ઓન ડ્રાઈવ માટે. આ 1 રન મુસ્તફા આ મેચમાં થોડું વધારે સાવધ રહીને રમી રહ્યા છે. પહેલી મેચમાં આપણે જલ્દી આઉટ થયા હોય તો બીજી મેચમાં આપણી જવાબદારી વધી જાય છે. એ પ્રકારની જવાબદારી ભરી રમત તેઓએ દાખવવી પડશે. બીજી ઓવર રમાઈ રહી છે. સ્કોર છે 7 વગર વિકેટે. નારાયણ 4 બોલ 1, મુસ્તફા 3 બોલ 5. બોલર છે જેનિશ. અમારા જે પ્રેક્ષકો 70-70 યુટ્યુબ ચેનલ પર અત્યારે જોડાયા છે બધાનું સ્વાગત છે. ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુના બેલ આઇકોનને દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. એક રન પૂરો કર્યો હતો. ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય એમ કહેવાય છે અને અહીંયા એક એક રનથી રન જે છે એ જમા કરવા પડી રહ્યા છે રનોની પાસબુકમાં. સ્કોર છે 8 વગર વિકેટે. બીજી ઓવર રમાઈ રહી છે. ધીમો દડો નાખ્યો હતો, ગતિ પરિવર્તન સારું રાખ્યું હતું. આજના દિવસમાં ડાબેરી બેટર અને બોલરોએ પ્રભાવિત કર્યા છે. ભાવેશ પવાર હોય, જેનિશ હોય કે પછી આપણે રાકેશ કહારની વાત કરીએ. જમણેરી ખેલાડીઓએ પણ છાપ છોડી છે, પરંતુ ડાબેરીઓનું આજે વર્ચસ્વ જોવા મળેલ છે. 8 રન. ફૂલ ટોસ બોલ અને આ સાથે બેઝ બોલ હિટ અને આ 6 રન. मुस्तफ़ा जिसने किया गेंद को मैदान के बाहर दफा. स्कोर 14 रन वगर विकेटे. सारी शुरुआत शालोम फाइटर्स वती અત્યાર સુધી. જેનિશ કોમેન્ટ્રી બોક્સ એન્ડથી સ્ટમ્પની નજીક આવીને નાખ્યો હતો. આ દડો મિસ ટાઈમ કરેલ છે, પરંતુ નિર્જન ક્ષેત્રમાં બોલ ટપી પડ્યો હતો અને 1 રન મુસ્તફાના ખાતામાં અહીંયા નોંધવામાં આવશે. સારી બેટિંગ કરી રહ્યા છે મુસ્તફા. વચ્ચે વચ્ચે જોખમ લઈ રહ્યા છે. જોખમ લેવું એ બહુ જરૂરી છે, ચાહે ધંધો હોય કે રમતગમત હોય કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં હોય. જોખમ ન લેવું એ પણ એક જોખમ છે. માટે જોખમ ન લઈને જોખમ લેવા કરતાં જોખમ લઈને જોખમ લેવું એ બહુ સારી વાત છે. દુનિયાના બધા જ સફળ માણસોએ ક્યારેક ને ક્યારેક જોખમ લીધું છે. દુનિયાના દરેક નિષ્ફળ માણસે ક્યારેક ને ક્યારેક જોખમ લીધું જ છે. આ વખતે ઓવરપીચ દડો ડ્રાઈવ કરીને મિડોન તરફ 1 રન લીધો હતો. સારી ફિલ્ડિંગ જોવા મળી છે અને આ સાથે 2 ઓવર બાદ રન સંખ્યા થઈ ગઈ છે 16. સરાસરી 8 રનની. જેનિશે 1 ઓવરમાં 10 રન આપેલ છે. નારાયણ 6 બોલ 3, મુસ્તફા 6 બોલ 12.
નૂરભાઈ 8 રનની એવરેજ, તમને લાગે છે કે રાત્રિની મેચમાં 8 રનની એવરેજ એટલે 8 ઓવરમાં 64 થી 70 આ એક સારો સ્કોર ગણાશે રાત્રિના મેચને ધ્યાનમાં રાખીને? બિલકુલ 70-75 આ એક ફાઇટિંગ સ્કોર રહેશે, બિકોઝ ફ્લડ લાઇટમાં બેટિંગ કરવી થોડીક હાર્ડ હોય છે અને ફ્લડ લાઇટમાં બોલિંગ કરવી બોલર્સ માટે ખૂબ જ સરસ હોય છે. અને જે રાતની મેચ છે, છેલ્લી મેચ, એમાં થોડા ઝાકળના બિંદુઓ પણ આપણને મેદાનમાં ચમકતા દેખાશે અને એની ઉપર એક ચાલવાની મજા છે. આંખના ચશ્મા કાઢવા હોય તો ડૉક્ટર કે સવારના ઘાસ ઉપર તમે વગર ચપ્પલે ચાલો તો તમારી આંખનું તેજ વધે. અને આટલું સુંદર મેદાન છે, જુઓ, એવું લાગે કે કથ્થઈ રંગની જે પિચ છે અને હરિયાળીવાળું મેદાન છે, એવું લાગે કે બનારસી પાન ઉપર લખનૌનો કાથો મારીને આપણે ક્રિકેટ જોઈ રહ્યા છે. અને નાના નાના કદાચ કોઈ પથ્થર બચ્યા બી હોય તો એ સોપારીનું કામ કરે છે. स्कोर 16 रन वगर विकेटे, नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है. बॉलर है दीप. रोटेशन पॉलिसी में ये भी एक अच्छी बात है कि दोनों टीमों को, नए खिलाड़ियों को इस मैच में चांस अगर यहां नहीं दिया तो आखिरी मैच में देना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन रहेगा. दीप के नए ओवर की पहली गेंद इस बार शॉर्ट पुल कर दिया है. कैच आउट का खतरा था लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक पहुंचे, उसके पहले 2 रन पूरा करने में कामयाब रहे थे. अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में दोनों बैटर्स द्वारा. राकेश पंचाल. नूर भाई, एक और चीज आपने गौर की होगी, आज सुबह से कोई भी बैट्समैन ने शॉर्ट रन नहीं दौड़ा है. सुरतीओ दौड़वामां पाक्का छे. काचो रन नहीं लઉં, લઈશ તો પાક્કો રન લઈશ. स्कोर 18. इस बार सॉफ्ट डिसमिसल कहा जा सकता था, लेकिन थोड़ा अपने आप से नाराज है नारायण और विकेट ले ली राकेश पंचाल. यलगार है. 18 पे 1. राकेश पंचाल विकेट लेने के बाद आत्मविश्वास से भरे हुए, और आते ही जड़ दिया. ओ माय गॉड, जन्नाटेदार से यानी कि आते ही अपने इरादे बयां किए यहाँ पर भावेश पवार ने सिक्सर के साथ. देखिए, लोग रात को जब सोते हैं ना तो मोबाइल चार्ज करते हैं. भावेश पवार जो है ये बैट को चार्ज करता है. स्कोर 24 पर 1. आते ही फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. ओहो, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट. क्या शॉट केलाय, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अद्भुत, अनोखा शॉट.
वॉट अ शॉट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो बॉल ने जल्दी ओळखो मारवो, वॉट अ शॉट, क्या बैटिंग की है भावेश पवार ने। ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में अपने को दी गई इज्जत और शोहरत को स्वीकार करते हुए 30 for 1, थर्ड ओवर। इस बार बेहतर बॉल थी, पंचाल की जड़ में की गई थी और एक एक्स्ट्रा रन। देखिए अब अच्छी गेंद पर भी एक रन जाना, ये अकलमंदी वाला क्रिकेट नहीं है नूर भाई। देखिए यहाँ से संभलना होगा, ऐसी गलतियों से दूर रहना होगा जहां फील्डिंग वाली टीम को, जहां पर एक भी रन नहीं था वहां पर एक्स्ट्रा रन दिया है। रनों की फिजूल खर्ची यहां पर महंगी पड़ेगी। 31 पर 1 भावेश पवार। मैं तो उस पल के लिए बेताब हूं जब भावेश पवार और राकेश कहार आमने सामने आएंगे, आप, क्योंकि दैट इज द कॉन्टेस्ट। लोग कहते थे सचिन और शेन वॉर्न, मैग्रा और सचिन, ऐसे एक कॉन्टेस्ट होते थे, शोएब अख्तर, सहवाग। आई वॉन्ट भावेश पवार एंड राकेश कहार टू फेस ईच अदर, स्टार वॉर ये होगा। हाल ही में राजकोट में क्या भव्य पारी खेलते हुए मैन ऑफ द मैच हासिल किया था भावेश ने, और वही फॉर्म उनका निरंतरता देखने मिली है। मुस्तफा, अब मुस्तफा आड़े बल्ले से ठोक डाला। प्ले में किस तरह से इंतजार किया था और जो हिट लगाया है सीधे बल्ले से मुस्तफा पठान ने 6 रनों के लिए। और नूर भाई, मेरे जीवन में भी एक दो पठान दोस्त रहे हैं, और पठानों की वसूली जो है ना, ये पठानी वसूली रहती है। और मुस्तफ़ा पठान ने ये जो रन वसूल किए, मुझे लगता है तेजाब फिल्म का लोटिया पठान भी मुस्तफ़ा पठान को सलाम करेगा। ऐसा स्ट्रोक खेला था। 3 ओवर 37 रन, 1 विकेट राकेश पंचाल, थोड़ा महंगा ओवर, लेकिन देखिए भव्य 11 को कमज़ोर न समझे। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम भव्य 11 पिपलोद, हाफ सेंचुरी मारने वाला बैटर भव्य 11 पिपलोद, ज़्यादा चौके छक्के लगाने वाली टीम भव्य 11 पिपलोद। तो मेरे ख्याल से ये पहले पारी है, दूसरी पारी का खेल जो है ये अभी बाकी है। लेकिन पहली पारी में पहले 3 ओवर में बोलबाला जरूर इस वक्त शालोम फाइटर्स का नज़र आ रहा है। ये हमारे 70-70 ब्रांड एम्बेसडर्स को आपने देखा, 70-70 किट बैग्स, क्रिकेट बॉल्स, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग, 70-70 टी शर्ट और ट्रैक पैंट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। जी हाँ, अब आएगा मजा। एक बाजू पवार, एक बाजू कहार, किसको लगाए गुहार। ये वो कॉन्टेस्ट है। इंडिया के टॉप 5 ऑलराउंडर्स जो है उसमें नाम शुमार है दोनों का। और कितने आसानी से वहां पर 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई गेंद, और चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर लगने वाला ये शानदार चौका। को जल्दी पिक किया और फिर बल्ले से उसको टिक किया, बहुत लाजवाब। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, 1 विकेट के नुकसान पर। राकेश कहार भी लेकिन कच्ची मिट्टी का बना हुआ क्रिकेटर नहीं है, उसके पास भी जरूर एक ऐसी कोई योजना रहेगी भावेश पवार के लिए, और उस योजना को कार्यान्वित करना होगा। 41, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी लंबा रनअप, काटना चाहते थे। देखिए अब ये राकेश कहार है, ये बॉल देखते ही बनी। भावेश पवार काटना चाहते थे, फुटवर्क ने साथ नहीं दिया, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल और थोड़ा कैजुअल खेले, बेहतर गेंद। बिल्कुल ऐसी वापसियां होनी चाहिए। अंग्रेजी में मुहावरा है, कमबैक इज बेटर देन सेटबैक, और वो कमबैक अच्छा रहा। भावेश पवार
देखते देखते 5 गेंदों में 17, पहले मैच में 11 गेंदों में 27 बनाए थे। अक्टूबर महीने की अक्टूबर हीट और कमेंट्री बॉक्स में चाय का आगमन होता हुआ। जिम्मी, चाय के ऊपर एक शायरी आपको मैं अर्ज करना चाहता हूं। ओहो, अब ये तो अद्भुत अद्भुत शॉट और गेंद को भेज दिया फाइनल बाउंड्री के बाहर। 4 बिना बदनामी का नशा किया करते हैं जिम्मी, हम वो मासूम लोग हैं जो चाय पिया करते हैं। और यहां पर 45 पर 1। अब देखिए क्या नजाकत के साथ खेला ये भावेश पवार है। ये जरूरत पड़ने पर वंदे भारत एक्सप्रेस बन जाता है और जरूरत पड़ने पर बलसाड़ पैसेंजर। स्कोर 46 पर 1, चौथा ओवर। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद शाकिर काकू के शातिर दिमाग की मैं दाद देना चाहूंगा। भावेश पवार को बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने प्रमोट किया। भावेश पवार अच्छी तरह जानते हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं। आशीष मोरे हमारे प्रोडक्शन कंट्रोलर, इनको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मेहनत है उनकी, युवा टेक्नीशियन। अब इस बार मुस्तफा को वो मौका मैं नहीं दूंगा। राकेश कहार, चौथे ओवर का खेल जारी है। 46 पर 1, एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली है शालोम फाइटर्स को, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ। भव्य 11 पीपलोद के पास भी बहुत सारा असला है जो दूसरी पारी में हमें इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा सेलिन दरबार द्वारा। इस बार बेहतर बॉल थी और प्लेड ऑन हो गए। विकेट ली राकेश कहार ने। आखिरकार एक खर्चीली गेंदबाजी के बाद ये विकेट का आना राकेश कहार के लिए अच्छी मानी जाएगी। और नतीजा मुस्तफा 18 बनाकर आउट हुए और उनकी जगह मैदान में उतरता हुआ शाकिर काकू। 4 ओवर 46 रन, 2 विकेट। देखिए किस तरह ओवर पिच गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी सीरा लेमन कट और आउट हो गए मुस्तफा पठान। और काकू का आगमन होता हुआ 4 ओवर 46 रन, 2 विकेट। मैच बहुत अच्छी स्थिति में इस वक्त। और 5वें ओवर की इब्तिदा होने जा रही है और अब आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं नूर मलिक। थैंक यू वेरी मच हरीश। देखिए 4 ओवरों की समाप्ति, अब 46 स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 विकेटों का नुकसान। अभी अभी मुस्तफा पठान लौटे हैं, अच्छी बल्लेबाजी की, वैसे 18 रन बनाए अपनी टीम के लिए, लेकिन आगमन हो चुका है टीम के कप्तान शाकिर काकू का। अब आप 2 आइकॉन्स को एक साथ मैदान पर देख रहे हैं, ऑल इंडिया आइकॉन, एक खुद कप्तान शाकिर काकू, सूरत आइकॉन। यानी अब मज़ा भी आने वाला है मैच में, लेकिन गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है राकेश कहार की। नहीं, और बहुत कम बार, मेरे ख्याल से सुबह से शायद ये पहली बार हो रहा है जब दोनों आइकॉन एक साथ मिल रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से पहली बार हम देख रहे हैं। और ये जो मिलन है ये बहुत ऐतिहासिक मिलन है, क्योंकि आंधी और तूफान दोनों एक साथ है। लेकिन मज़ा इसी में है नूर भाई, जिंदगी में कोई भी चीज़ आसान नहीं है। अगर सबसे आसान चीज़ है बिना कुछ किए वो है बालों का डेंड्रफ, वरना हर चीज़ में मेहनत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भव्य 11 पीपलोद के लिए यह सुनहरा अवसर है कि दोनों बड़े खिलाड़ी है, दोनों को आउट करो। ये भव्य 11 पीपलोद की सोच होनी चाहिए। दूसरी ओर शाकिर काकू अंपायरे ग्राउंड में चूनो मंगावेल છે ભાઈ, જરા બોલ હવે થોડો મેલો થઈ રહ્યો છે અને એને ચૂનામાં થોડો
આપણે રપ કરીને મેચ રમવાલાયક બનાવવાનો છે. રાતના સમયે આ વાત પર ધ્યાન રાખશો કાર્યકર્તા ભાઈઓ. 4 ओवर 46 रन 2 विकेट. नूर भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि शाकिर काकू अब भावेश पवार को खुला लाइसेंस दे देंगे कि भावेश पवार अब आप बिल्कुल इस तरह से तेज बल्लेबाजी कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बाकी मैं संभालने के लिए आ चुका हूं और बीच बीच में अगर कोई खराब गेंद आई तो मैं भी हल्ला कर दूंगा. राकेश कहार का हालांकि ओवर खत्म हुआ है. राकेश पंचाल से आपकी क्या उम्मीदें रहेगी? देखिए, राकेश पंचाल भी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है. वैसे एक विकेट उनके हाथे में भी आ चुका है. जो अच्छी गेंदबाजी उनके कैरियर में वो जो कर चुके हैं वो यहाँ पर अब दिखानी होगी. जो यानी कि जो अनुभव है उसका निचोड़ यहाँ पर देना होगा इस STPL में. और जिस तरह से आपने कहा कि भावेश पवार को अब खुला छोड़ दिया गया, यानी कि जो लगाम लगाई थी वो हटा दी गई अब साकिर काकू द्वारा. इंडिया के 2 बेहतरीन बल्लेबाज मैदान के ऊपर है, लेकिन गेंदबाजी की बात की जाए तो सूरत के एक से बढ़कर एक गेंदबाज भी आपको देखने को मिलेंगे भव्य 11 पिपलोद की ओर से. राकेश पंचाल. ये छोटी गेंद थी, नसीहत जरूर दी है. देखिए, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से ही इस गेंद को निकालने का प्रयास किया गया था. भावेश पवार. और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह पर उन्होंने स्ट्रोक खेले, अलग अलग जगह पर स्ट्रोक खेले हैं. ये बताते हैं कि वो कितने ऊंचे दर्जे के हरफन मौला खिलाड़ी हैं. और 50 रन पूरे होते हुए शालोम फाइटर्स के 2 विकेट के नुकसान पर 52. इस बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का संकेत मिला अंपायर की ओर से. ये होता है कभी कभी जब जब 6 लगता है तब थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर देखने को मिलता है और उसी के जरिए ये वाइड की गेंदबाजी आपको देखने को मिलती है कभी कभी. जी हाँ, कमबैक बॉल थोड़ा प्रेशर वाला रहेगा. स्कोरबोर्ड का प्रेशर इस वक्त दिखाई दे रहा है. इस बार पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन सिंगल जरूर निकाला गया, यानी कि स्ट्राइक को रोटेट कराया. और स्ट्राइक पर अब टीम के कप्तान साकिर काकू. देखिए, कमबैक वाली गेंदबाजी थी राकेश पंचाल की, अच्छी गेंद जिसके ऊपर केवल सिंगल निकाला गया. सिक्सर मारने का मौका भी दिया गया था, लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी करनी होगी राकेश पंचाल को. वैसे अभी तक एक विकेट उनके हाथों में, 27 रन जरूर खर्च हुए, लेकिन वो 4 गेंदें गोल्डन गेंदबाजी हो सकती है उन 4 गेंदों में जो राकेश पंचाल की बाकी है. ये बड़ा हिट हो सकता है और आखिरकार मिड विकेट के क्षेत्र में साकिर काकू पहुंचा दिया. देखिए, एक बार फिर वाइड का संकेत मिला है अंपायर की ओर से. लेकिन हरीश सर, एक चीज़ जरूर मार्क की है, सलोम फाइटर्स का जो भी बल्लेबाज, यानी 3 बल्लेबाजों को देखा गया, आते ही शुरुआत बड़े हिट के साथ. मुस्तफा पठान ने बड़े हिट के साथ शुरुआत की थी, साकिर काकू ने की है वो शुरुआत. उसके पहले भावेश पवार ने भी सिक्सर के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत की थी. यानी ये अच्छे संकेत है. इस बार हल्के हाथों से खेला है, खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था, लेकिन देखिए रनों पर रोक लगाई है अब. अच्छी गेंदबाजी, ये डॉट गेंद को रुका हुआ 61 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर, और ये 5वां ओवर प्रगति पर.
जी हाँ, यहाँ पर 4 या 5 रन वाला एक ओवर जरूर चाहिए 8वें ओवर के समाप्ति के पहले, जहाँ वो वापसी कर सके, और अगर विकेट मिले तो सोने पे सुहागा। देखिए अब जरूर आप कह सकते हैं कि राकेश पंचाल ने एक अच्छा कमबैक किया है। 2 सिक्सर जरूर लगाए गए, लेकिन 3 ऐसी गेंद भी फेंकी है जिसके ऊपर केवल सिंगल आया है या फिर डॉट गई है। स्कोर 62 रन। आखिरी गेंद रहेगी वैसे राकेश की। अब राकेश पंचाल, कई बड़ी टूर्नामेंट्स में वैसे राकेश पंचाल बेस्ट बॉलर के रूप में आ चुकी है, वही करतब अब दिखाना होगा। लेकिन आखिरी गेंद है अब। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर गेंद को जिस तरह से रोका है। देखिए 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जरूर गई थी, लेकिन उसका पीछा किया गया और उस गेंद को रोका है, और आखिरी गेंद केवल सिंगल में तब्दील होती हुई। हरीश्वर, आखिरी 3 गेंदों को आपने देखा, सिक्सर्स लगे, लेकिन आखिरी 3 गेंदों में एक बहुत ही अच्छा कमबैक राकेश पंचाल का। स्कोर 63। जी हाँ, शुरुआत में राकेश पंचाल खर्चीले नजर आए, लेकिन बाद में पंचाल की गहरी चाल को समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और 5 ओवर मुकम्मल होने पर 2 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त 63 रन बने हैं। 63 फॉर द लॉस ऑफ 2। साकिर काकू 3 बॉल 7, भावेश पवार 10 बॉल 30, 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और यहाँ पर अभी भी 18 गेंदें शेष है, और 100 का आंकड़ा ये इस वक्त मुझे संभव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर भव्य 11 पिपलोद ये स्कोर को 85 से 90 के बीच में भी अगर रोकने में कामयाब रही, मेरे ख्याल से एक अच्छी वापसी कही जाएगी, और इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। रनों को रोकने वाली नहीं बल्कि विकेटों को गिराने वाली गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाज के दिल और दिमाग पर छाने वाली गेंदबाजी करनी होगी, और सेलिन दरबार अपने गेंदबाजों से बात जरूर कर रहे हैं कि मुझे किस तरह की गेंदबाजी चाहिए, और शाकिर काकू वहाँ पर थोड़ा मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं ऑपोजिशन टीम से। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इसको सॉफ्ट स्लेजिंग भी कहा जाता है। यस, बॉल दिखा मुझे भाई, देख लेने दे, मुआयना करने दो भाई। लेकिन एक चीज़ है, पिछले 1.5 से 2 साल में मैंने देखा है शाकिर काकू के अगुवाई में मुसलसल टीमें अच्छा खेलती आ रही है, और इसलिए वो एक नेचुरल चॉइस है। हाल ही में राजकोट 70-70 एल के स्टार धमाका बिग बैश में भी उनकी लीडरशिप क्वालिटी हमने देखी राजशक्ति रिबड़ा के लिए, और जब वो रनर अप रहे थे 2.5 लाख रुपए की इनामी राशि उन्होंने हासिल की थी, और धमाका CSK ने विजेता पद हासिल किया था। तो अभी भी 18 गेंदों का खेल शेष, और गेंदबाज दीप। करारा हिट आते ही दीप का जैसे स्वागत किया हो। देखिए ये भावेश पवार का सिक्सर है जी, बिल्कुल 6 के साथ 69। टच एंड गो शॉट, आई कब गई कब पता ही नहीं चला, और इस तरह की बल्लेबाजी। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, मेरा गुस्सा सुनामी है, और शांत हूँ समुंदर जैसा, गुस्सा मेरा अगर सुनामी है, और इसलिए मेरे खेल की पूरी दुनिया दीवानी है। भावेश पवार जिस तरह से स्ट्रोक को देखिए, एफर्टलेस, पियरलेस, फियरलेस, मैचलेस, मतलब कोई खौफ नहीं है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपने ही अंदाज में खेल रहा हूँ। यहाँ पर मुझे देवानंद साहब का वो गाना याद आ रहा है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं अपने अंदाज से जीऊंगा। यू कैनॉट टेल मी व्हाट आई नीड टू डू, आई विल लिव क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट ऑन माई टर्म्स। दीप पटेल एक उभरते हुए सितारे, एक बार फिर भी छठ कष्टों को खेलने का प्रयास किया गया था। देखिए लौटाया गया है, बड़ा विकेट जरूर कहूंगा यहां पर दीप पटेल के लिए।
पहले सिक्सर का मौका, उसके बाद पेविलियन का रास्ता दिखाया और ये बहुत ही बड़ा विकेट भावेश पवार के रूप में। सबसे बड़ी बात है दीप की, मैं दाद देना चाहूंगा। देखिए बिल्कुल लेग स्टंप की लाइन को रखा था, उन्हें मालूम था भावेश पवार कभी ना कभी तो मिस टाइम करेंगे और शायद ये वो पहली ऐसी गेंद थी जहां पर पूरी तरह चारों खाने चित हुए और दीप ने भी यहां पर बता दिया कि भावेश पवार भले ही आपकी टीम का श्रेष्ठ खिलाड़ी है लेकिन मैं दीप हूं। और वहां पर उन्होंने भावेश पवार का विकेट लेकर खुशी का इजहार किया। लेकिन क्या जबरदस्त पारी खेलकर भावेश पवार लौटा। ये एक और बात जो मैंने सुबह भी बताई थी, अभी भी बताऊंगा, ये खिलाड़ी चाहता तो अपने हाफ सेंचुरी के लिए थोड़ा रुक कर खेल सकता था, लेकिन ये इसका अंदाज है। भावेश पवार को आप ये नहीं कह सकते कि आपको कैसा खेलना है। आई विल प्ले क्रिकेट ऑन माई टर्म्स। और वो वाली पारी यहां पर उनकी खत्म होती हुई 69 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और ये वो समय है जब मैच में पूरी तरह से वापस आने का मौका मिल चुका है। दीप अगर यहां पर एक और विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो भव्य 11 पीपलोद की वापसी तय है। और देखिए एक और बड़ा बल्लेबाज अब बीच मैदान पर, मयंक पटेल। इन्हें वैसे अल्थान का टाइगर कहा जाता है, द टाइगर ऑफ अल्थान। 69 69 पर 3 भावेश लौटे, 36 बनाए थे 12 गेंदों में। एक और अच्छी गेंद थी, देखिए हल्के हाथों से खेलने पर मजबूर किया था यहाँ पर दीप ने। केवल सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर, लेकिन मयंक पटेल भी हरीश सर जानते हैं कि अब स्ट्राइक रोटेट कराना भी है, साकिर काकू को ज्यादा मौका देना है अब। नहीं, बहुत ज़रूरी है। और काकू ने भी कहा होगा थोड़ा अब मुझे स्ट्राइक दिया कर, और वो तो आप जानते ही है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ओहो, एक और बड़ा विकेट और वो भी दीप पटेल के हाथों में। देखिए दोनों धुरंधर शेरों को लौटाया है यहाँ पर आज दीप पटेल ने। यानी कि आज दीप पटेल सोचेंगे कि आज मैंने क्या कर दिया। एक ऑल इंडिया आइकॉन को लौटाया और एक सूरत आइकॉन को लौटाया, यानी कि 2 बड़े विकेट्स। बहुत जबरदस्त बॉलिंग कही जाएगी दीप की। दोस्तों हमारे बीच इस वक्त वीरेन भाई पंचीवाला के चश्मो चिराग इस वक्त शिवम पंचीवाला हमारे साथ उपस्थित है और उनका एक भव्य सत्कार अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और भव्य सत्कार यहाँ पर अब हम करने के लिए तैयार है। वेलकम शिवम भाई पंचीवाला। हमारे महेश भाई से प्रार्थना है कि आपका एक भव्य सत्कार किया जाए शॉल और सम्मान चिन्ह देकर। शिवम पंचीवाला, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपको अच्छी सेहत मिले, आप बहुत तरक्की करें। दीप के बारे में क्या कहा जाए। ये जो डर, ये जो दर्द, ये जो गम है तेरे अंदर है, ये जो डर, ये जो दर्द, ये जो गम है तेरे अंदर है, एक बार खुद से बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख दीप, तू भी एक सिकंदर है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर दीप पटेल की। देखिए शुरुआती गेंद, पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा था उन्हें, लेकिन उसके बाद उनके इरादों को उन्होंने बरकरार रखा, यानी मक्कमता रखी और 2 बहुत ही बड़े विकेट हासिल किए वैसे मयंक और अब मिहिर। हवा में गेंद, एक और हो सकता है बड़ा विकेट, लेकिन कैच छूटा है। ये कैच छूटा है वो भी राकेश कहार से। देखिए ये कैच छूटना क्रिकेट का एक हिस्सा है, कभी कैच छूटता है, कभी कैच पकड़ लिया जाता है। यानी कि क्रिकेट में बहुत सारी विशेषता है, विभिन्नता है, वो देखने को मिलती है मैदान पर। प्योर मैच प्रेशर। जो बड़े खिलाड़ी है ना, वो प्रेशर लेते नहीं, प्रेशर देते हैं। और इसलिए हमारे मुंबईया स्लैंग में एक बहुत फेमस डायलॉग है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और वहाँ पर वो कैच राकेश ने, लेकिन दीप की मैं तारीफ करूँगा। आई थिंक
जो हिसाब से खराब परिस्थितियों में दीप ने जो यहाँ पर खुददारी दिखाई है, दीप का ये स्पेल, मैच का रिजल्ट कोई भी हो, दीप ने हम सबको यहाँ पर प्रभावित किया है। और इसीलिए कहा जाएगा आज के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा की जीप और सतीश सुरती साहब की टीम का दीप दोनों लाजवाब है। 6 ओवर 70 रन 4 विकेट, जो स्कोर 90-95 संभव नजर आ रहा था, एक ही ओवर में 2 बड़े खिलाड़ियों को आउट किया दीप ने। वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग के सीजन 2 में दीप की वैल्यू बढ़ जाएगी। और देखिए जिस उद्देश्य के साथ ये इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, यानी कि सूरत के सितारों को चमकाने का, ये जरूर सूरत के सितारे मिल चुके हैं अब। ये लास्ट बॉल पे रन लिया ना, अपडेट करना। छह ओवरों की समाप्ति। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आखिरकार। देखिए फाइनल के क्षेत्र में गेंद को ढकेला था 4 रनों के लिए, और चौके के साथ अब आप कह सकते हैं पूरे 125 रन हो चुके, 75 रन ये 7वां ओवर प्रगति पर। सलोम फाइटर्स और भव्य 11 के बीच में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला भव्य 11 ने किया था। सलोम फाइटर्स को दावत दी गई थी बल्लेबाजी की। स्कोरबोर्ड के ऊपर आप 75 देख सकते हैं। मैच की शुरुआत जब हुई थी तो 3 या 4 ओवर में बहुत ही बेहतरीन रन रेट के साथ खेल रही थी सलोम फाइटर्स। आखिरकार उंगली उठी है, लौटना पड़ेगा पेविलियन में। तो खुशखबर है, लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम भाई हमारे साथ क्या जुड़े, खुशखबरी लेकर आए। शिवम भाई पंचीवाला की ओर से सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग के आयोजक गंगेश वल्लवी, उनको इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने 11,000 रुपये का डोनेशन डिक्लेयर किया है। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। शिवम भाई पंचीवाला, अपने पापा की तरह आप भी दिलदार आदमी हैं, और आपने ये जो हमें सपोर्ट किया है पहले साल, ये सपोर्ट आने वाले सालों साल आप जारी रखेंगे, और सूरत के क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर जनरस सपोर्ट इन दिस टूर्नामेंट। थैंक यू। पांच विकेटों का नुकसान 75 पर सलोम फाइटर्स। देखिए गिनती की गेंद यानी कि कुल मिलाकर 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष है सलोम फाइटर्स के लिए, और बड़े प्रहार एलिस पटेल अब मैदान पर। हल्द्वानी का टाइगर मयंक पटेल भी मौजूद है। अब मयंक पटेल को ऐसा लग रहा है कि स्ट्राइक लेने की जरूरत रहेगी। वैसे एलिस पटेल की बात की जाए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है सलोम फाइटर्स की ओर से। जैनिश एक बार फिर अपने बॉलिंग मांग पर। हवा में गेंद जरूर है लेकिन शायद सुरक्षित रहेंगे। देखिए फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ये पहला रन काफी तेजी से लिया गया और इंतजार था स्ट्राइक का मयंक पटेल को। अब उनके हाथों में स्ट्राइक है, सामना होगा जैनिश का। 76 पर पहुंच चुकी है अब सलोम फाइटर्स। हरीश, जिस तरह से हम बात कर रहे थे फाइटिंग स्कोर की, फ्लडलाइट की रोशनी में 70 अब जाना स्कोर, यानी ये एक अच्छा स्कोर खड़ा हो चुका है अब सलोम फाइटर्स के लिए। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 10 गेंदों में ज़बरदस्त वापसी की है भव्य 11 पिपलोद ने। अब तक ऐसा लग रहा था मैदान में एक ही टीम क्रिकेट खेल रही है, लेकिन अब दीप के वो ओवर के बाद लग रहा है 2 टीमें खेल रही है, और भव्य 11 का भव्य प्रदर्शन गेंदबाजी का अब निखार पर आ चुका है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, ब्लॉक में गेंद फेंकी थी, हल्के हाथों से खेलने पर मजबूर किया था। केवल सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर। ये जरूर देखा गया है भव्य 11 के गेंदबाजों द्वारा, पहली गेंद के ऊपर हिट लगाने का मौका देते हैं, उसके बाद 5 गेंदों में जैसे रोक लिया जाता है। जी हाँ, पहले लालच दिया जाता है, लालच बुरी बला है। और हमने देखा किस तरह से
वो लालच के शिकार हुए बड़े बड़े सूरमा खिलाड़ी आज पूरे दिन में। 77 रन 5 विकेट पर 7वां ओवर। बार बार बड़े प्रहार की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैनिस और दीप जैसे गेंदबाज क्या बड़े हिट लगाने का मौका देंगे, ये आने वाली गेंदें बताएगी। वैसे बात की जाए तो दीप का एक ओवर फेंकना शेष रहेगा। ये कप्तान पे रहता है कि वो किसको गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए देते हैं आखिरी ओवर के लिए, लेकिन इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष है। 78 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये प्रहार जरूर किया है, रोकना नामुमकिन था। बहुत ही बेहतरीन पीछा किया गया था, मेहनत की थी गेंद को रोकने की, लेकिन 4 रनों से नहीं रोक पाए। पहली गेंद चौका देकर गई थी, आखिरी गेंद भी चौका देकर गई है और स्कोर है 82 रन आफ्टर 7। बहुत अच्छा पढ़ लिया था उस गेंद को और टाइमिंग देखते ही बन रहा था। आलीशान शॉट कहा जाएगा और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर हम देख सकते हैं मयंक द्वारा। एक परफेक्ट लेग कटर गेंद थी, गेंद को पहले टप्पा खाने दिया, शॉट के लिए जगह बनाई और फिर उसे बहुत उम्दा तरीके से खेल दिया। मयंक पटेल इस वक्त क्रीज पर डटकर खड़े हुए, ये अच्छी बात है। पहले मैच में जो उनका स्वर्णिम बल्लेबाजी का फॉर्म था वो दूसरे मैच में भी उन्होंने निरंतरता के साथ कायम रखा है। अल्थान के टाइगर के रूप में उन्हें नवाजा गया है और ऐसा कहा जाता है टाइगर की झलक सबसे अलग। और आखिरी जो 6 गेंदें हैं वहाँ पर टाइगर को देखना होगा, क्योंकि उसके बल्ले में अब खून लग चुका है टाइगर के, और टाइगर किस तरह खेलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये आखिरी ओवर बहुत नाजुक मोड़ पर है। अब तक की गई सारी अच्छी मेहनत इसके ऊपर पानी फिरता है या फिर वो जो मेहनत है वो रंग लाएगी, ये बताने वाला ये आखिरी ओवर रहेगा। दीप का कमेंट्री बॉक्स शोर से बीजे पटेल ग्राउंड भीमराद सूरत में, ये सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग जिसके आयोजक है 70-70 एनडी स्पोर्ट्स। बैकफुट जाकर स्ट्रोक को खेलने पर मजबूर किया था इस बार, देखिए। लेकिन एलिस पटेल भी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। पहली गेंद के ऊपर स्ट्राइक को रोटेट करा दिया उन्होंने। स्कोर अब 83 पर। अरे सर, 83 का आंकड़ा जब जब आता है तब विश्व कप जरूर याद आता है, जो भारत ने पहला विश्व कप 1983 में जीता था। नहीं, वो ऐतिहासिक लम्हा हम कभी नहीं भूल सकते। पहला वर्ल्ड कप कपिल देव के नेतृत्व में जो जीता गया। हिट का प्रयास था, राकेश वहां पर मौजूद थे। आसान सा कैच और दीप के खाते में जुड़ता हुआ एक और महत्वपूर्ण विकेट। बहुत बढ़िया उंगलियों फेरा था और उसका शिकार हुए मयंक पटेल, और एक उम्दा कैच यहां पर कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने अंजाम दिया गया। राकेश कहार ने ये कैच लिया और नए बैटर जा रहे हैं अब चेतन। देखिए, घड़ी की आवाज सुनाई देती है, बीप बीप बीप, और विकेट ले रहा है भव्य 11 पिपलोद का दीप दीप दीप। तो बिल्कुल यहाँ पर बीप बच चुका है। और नूर भाई, आखिरी ओवर करना ये कोई शेरदिल गेंदबाज का ही काम है। बड़े बड़े सूरमा भोपाली आखिरी ओवर करने से कतराते हैं। नो, मुझे मत दो, मने नहीं आपो, माला नका देऊ, आई विल नॉट गिव लास्ट ओवर, प्लीज डोंट गिव इट टू मी। आखिरी ओवर करने के लिए जज्बा होना चाहिए और अल्थान के टाइगर को वहां पर भव्य 11 पिपलोद के शेर ने शिकार कर दिया। जी बिल्कुल, और 3 शिकार जो उन्होंने किए, सबसे पहले भावेश पवार, उसके बाद साकिर काकू और उसके बाद अब मयंक पटेल द टाइगर ऑफ अल्थान। यानी कि 3 नामी खिलाड़ियों को लौटाया उन्होंने। आज नींद बहुत अच्छी आने वाली है दीप पटेल को। इस बार प्रहार था, लेकिन देखिए वहां पर एक और विकेट, यानी कि ये चौथा विकेट जुड़ता हुआ दीप के खाते में। क्या बात है, क्या दीप इस टूर्नामेंट के पहले बॉलर बनेंगे जो फाइफर पूरा करेंगे। एक ऐसा सपना, और फाइफर अगर पूरा करते हैं, मैं अंपायर से दरख्वास्त करूंगा वो बॉल उन्हीं को दी जाए जब पारी समाप्त हो।
क्योंकि 12 बॉल में 5 विकेटें लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 4 ले चुके हैं, एक बाकी है, लेकिन क्या गेंदबाजी की है यहाँ पर दीप ने। परिस्थितियां आसान कभी नहीं होगी, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाना पड़ता है। और नए बैटर के रूप में उतरते हुए अखिलेश यादव, जो शालोम फाइटर्स 5 स्टार होटल में खाना खा रही थी, उनको अब सीधा उडुपी रेस्टोरेंट तक लेकर आए हैं यहां पर भव्य 11 पिपलोद के गेंदबाज दीप। देखिए फाइफर का चांस तो है ही दीप पटेल के पास, लेकिन हैट्रिक का चांस भी हो सकता है। अगर इस गेंद के ऊपर विकेट आता है तो 2 सफलताएं उनको मिल सकती है, एक हैट्रिक की और एक फाइफर की। फिलहाल स्कोर 83 पर 7, 83 पर 7 सलोम फाइटर्स। अखिलेश यादव एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज और अच्छी बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। ये देखिए आते ही अखिलेश यादव, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात। क्या बात है, ये पहला हैट्रिक मिल चुका है, दीप पटेल ने लिया है और पहला फाइफर लेने वाला गेंदबाज भी मिल चुका है एसटीपी। नहीं होता, 12 बॉल में 5 विकेटें लेना, कमर को तोड़कर रख दिया है यहां पर शालोम फाइटर्स के। एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया। सेलिन दरबार अगर आज की रात को सबसे बड़ा थैंक्स किसी को कहना चाहेंगे तो वो होंगे दीप। और अगर इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाता है भव्य 11 पिपलोद, मुझे ऐसा लगता है कि सुरती साहब जो है आज रात भर अपनी टीम के साथ जश्न मनाएंगे। हाँ, बिल्कुल पंच पकवान वाला भोजन रहेगा, कोल्ड ड्रिंक्स रहेंगे और बहुत सारी मज़ा मस्ती, क्योंकि दीप ने वो कर दिखाया। और ऐसे खिलाड़ी बहुत कम होते हैं। पहली एसटीसीपीएल में आज जब राहुल ने सुबह हमको मुतासिर किया, सुबह राहुल की थी, तो शाम जो है ये दीप की रही है। और दीप शाम को ही जलता है और प्रकाश देता है। बिल्कुल सही बात है, एसटीपीएल की कहानी में पहला हैट्रिक दीप के नाम सुनहरे अक्षरों से। बेहतरीन स्ट्रोक है, वहां पर फील्डर मौजूद थे और क्या बात है, एक और कैच वहां पर मॉन्टी द्वारा। ओ माय गॉड, दिस इज डबल हैट्रिक। 4 बॉल में 4 विकेट, डबल हैट्रिक। ऊपर वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता है और दीप की मेहनत को आज कामयाबी। देखिए उंगलियों को बहुत अच्छा फेरते हैं। आई थिंक ही इज वन ऑफ द रिविलेशंस। बहुत जल्द ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में वो दिखेंगे। लेकिन वो जो कैच लिया गया वो भी कोई कम कैच नहीं था और ये डबल हैट्रिक यहां पर पूरा करते हुए, व्हाट अ वंडरफुल कैच। डबल हैट्रिक दीप। 70 की टेनिस बॉल उन्हें दी जाएगी। ओ हो, एक बहुत मशहूर जूते का ब्रांड है स्लेजेंगर, और स्लेजेंगर में छलांग लगाता हुआ एक चीता है। बिल्कुल वो चीता वहां पर मुझे नजर आया। स्लेजेंगर वाले देखेंगे तो अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे उनको। दैट वाज द हाई क्वालिटी कैच। और दीप डबल हैट्रिक। तो दीप के इस डबल हैट्रिक के लिए गंगेश भाई वल्लभी की ओर से एक स्पेशल टी शर्ट उनको दिया जाएगा। ओ माय गॉड, 5 गेंदों में 5 विकेटें। दिस इज सेंसेशनल। भव्य 11 पिपलोद। और दीप के लिए सतीश भाई सुरती की ओर से 1000 रुपए। 83 रन आपने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 83 पे पूरी पारी सिमट गई। और मेरे ख्याल से ये 2023 का मैंने देखा हुआ शायद ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है दीप का। और ये इसलिए खास बन जाता है कि जहां विकेट का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था वहां पर दीप आया और वो छा गया। 2 ओवर 10 रन और 7 विकेट। और वो भव्य टी शर्ट गंगेश भाई वल्लभी के हाथों इनिंग्स ब्रेक में हम देने जा रहे हैं। दीप व्हाट अ परफॉर्मेंस। वो टेनिस बॉल 70 की उनको दी जाएगी। और
1980 के दशक के एक फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा है, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। और जब शाम आई, शाम ढली तो दीप आया। और दीपक का काम ही है, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हदों को रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे। और आज बिल्कुल एक लामहदूद खिलाड़ी, 2 ओवर 10 रन 7 विकेट, और उनको एक स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा है गंगेश भाई वल्लभी की ओर से, एक टी शर्ट। और आज के आखिरी मैच का टॉस अब हम यहां पर अंजाम देने जा रहे हैं डेल्टा एड्यूटेक और जय शिव। थैंक यू। देखिए वहां पर टी शर्ट दी जा रही है दीप पटेल को, जिन्होंने 7 विकेट लिए, केवल 9 रन खर्च किए अपने 12 गेंदों में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसे, लेकिन जो दीप ने विकेट्स लिए थे वो जरूर दिखाए जाएंगे वैसे स्क्रीन पर। और 1,000 रुपया सतीश भाई सूरती की तरफ से, यानी कि उनकी ओनर की तरफ से भव्य वहां पर देखिए उस 1,000 के साथ दीप पटेल के लिए। 7 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज है। आई थिंक 12 गेंदों में 7 विकेट लेना, और वो भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। दीप भाई जरूर आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसे मौके पर कई लोग बोलते हैं, सुबह किसका मुंह देखकर आप नींद से उठे थे? बस ऐसे ही उठ गया था बेटा। मैच आसान नहीं था, जिस हिसाब से भावेश पवार और शाकिर काकू खेल रहे थे। ऐसे में जब आपको गेंद दी गई, आप क्या सोच रहे थे? मतलब आपने अपने स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की, या आपने बैटर के गेम को स्टडी किया और उनको गेंद की? ना, मैं रिदम से डाल ही रहा था। मैं बस मेरा था थिंकिंग के सिर्फ डॉट पे जाऊं, और विकेट आती गई। और 70-70 एनडी स्पोर्ट्स ने ये जो मौका दिया है यंग उभरते हुए खिलाड़ियों को खेलने का, ये एक वजह भी है कि आज आपका खेल निखरते हुए देखने मिला। आप एसटीसीपीएल के आयोजकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छा स्टेज है जहाँ से उभरते सितारे ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने बोली दीप, इसी तरह कामयाबी आपके कदम चूमती रहे। देखिए जो इनके कपाल के ऊपर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही है, ऐसे ही कोई आदमी मशहूर नहीं होता। जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और आज इतिहास को बदला है दीप ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक बार 70-70 की बॉल जरूर बताइए जिससे आपने ये कारनामा कर दिखाया। थैंक यू सो मच, एंड लेट्स गो फॉर द टॉस ऑफ द लास्ट मैच। डेल्टा एड्यूटेक प्रदीप पाटिल and Jai Shiv Jimmy Darbar to report for the toss. Jimmy Darbar and Pradeep Patil. વિકીભાઈ પટેલ તરફથી પણ 1,000 રૂપિયા આપની આ દરિયા દિલી
दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर सबसे पहले कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर का संपर्क करेंगे, क्योंकि थोड़ी खिलाड़ियों की जान पहचान करने में इनको दिक्कत होती है, तो ये जरूरी रहता है। भवेश परा विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग। पहली गेंद के ऊपर करारा शॉट, और पिछली बार जहां पे राकेश कहार ने मैच को, अपनी पारी को जो उन्होंने समाप्त किया था, जिस फॉर्म को उन्होंने शुरू किया था, उसी फॉर्म के चलते पहली गेंद के ऊपर करारा शॉट। ये शॉट नहीं है जिस भाई, ये तो एक संदेश है। 84 रन का टारगेट है, उसे कैसे अचीव करेंगे, ये इनकी उन्होंने झलकी दी है, ये इन्होंने झलकी प्रस्तुत की है। वहां पे स्लो बाउंस डालने का प्रयास, लेकिन थोड़ी दिशा ठीक नहीं थी, लेकिन अच्छी वापसी यहाँ पे मैं गेंदबाज की मानूंगा। और तारीफ इस मैच में, ये मैच जो है ना याद रखा जाएगा दीप पटेल के लिए। पिछला साल क्रिकेट का आप इतिहास उठा के लेख लीजिए, 6 गेंदों में 6 सिक्सर देखे होंगे, 5 गेंदों में 5 विकेट। ये इम्पॉसिबल फैक्टर आज पॉसिबल हुआ है, ये STPL में ये कारनामा बना है, मानना पड़ेगा। वो एक तरीके से देखा जाए ना, अटमोस्ट डिटर्मिनेशन एंड ग्रेट ऑफ बॉलर दीप पटेल, मानना पड़ेगा। अपील जरूर है कॉट बिहाइंड की, सवाल पूछा गया जरूर, वहां पे विश्वास काफी था, सोच भी रहे ऊपर जाए या ना जाए, जी नहीं, अंत में मना किया विकेट कीपर ने भी। और 4 रन के साथ जहां पे पारी का आगाज हुआ था, लेकिन ये मैच वाकई अजीज भाई, नूर भाई, ये जाना जाएगा दीप पटेल के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने वापसी की थी ना गेंदबाजी में, काबिले तारीफ। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में भवेश परा के द्वारा थोड़ा पेस में उन्होंने जनरेट किया, पेस को थोड़ा बढ़ाया इस बार, और फ्लिक करने का मौका भी नहीं दिया वहां पे पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी 1 रन आसानी से वहां पे मिला जरूर है। और राकेश कहार के साथ शिवम विश्वकर्मा वैसे देखा जाए तो दैत्य शिल्पी है, और यहाँ पे इनको शिल्पकार बनना पड़ेगा भव्य 11 को, अगर इस मुकाबले को जीत के सेमीफाइनल के प्रबल दावेदार अगर बनना है, अपनी जो मजबूती और पेश करनी है, तो शिवम विश्वकर्मा, जैसे अजीत सर बता रहे कि ग्रामीण में 6 गेंदों में 6 सिक्सर उन्होंने लगाए थे, तो ये इनका रुतबा बताता है किस प्रकार का ये बल्लेबाज है। इसीलिए इनके जो ऑनर है सतीश भाई, उन्होंने काफ़ी विश्वास जताया है इनमें। हाईएस्ट बीड सतीश भाई की जो भव्य लिंग टीम है, उसमें हाईएस्ट बीड है इनकी। चकमा दिया, चेंज ऑफ पेस, वहां पे बैक ऑफ लेंथ, हल्का सा उंगलियां घुमा इंडेक्स फिंगर का, ये भावेश पवार की खासियत है, इनके पास वो सब हुनर है, तेज भी डालते हैं, यॉर्कर भी है, और अगर नया बल्लेबाज है तो उसको चेंज ऑफ पेस के जरिए फंसाते हैं। इस बार ठीक तरीके से वैसे गेंद कनेक्ट नहीं हुई थी, थोड़ा खेलना चाहते थे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, गेंद भले गई है स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन के साथ शिवम विश्वकर्मा ऑफ द मार्क, और समाप्ति होगी यहां पे पहले ओवर की। पहले ओवर के बाद 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 84 रनों के जवाब में। सो भव्य 11 ऑन द वे टू चेजिंग डाउन 84 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर 6 रन विदाउट लॉस। अजीत सर, थैंक यू सो मच कमेंट्री बॉक्स। आज के आखिरी मुकाबले के टॉस के लिए अब हम तैयार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं 70 ND स्पोर्ट्स प्रेजेंट सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 1, और धमाकेदार शुरुआत। मेरे साथ 2 बड़े कैप्टन्स हैं, प्रदीप पाटिल, एक तरफ डेल्टा एड्यूटेक विजेंद्र पाटिल साहब की टीम है, और एक तरफ वीरेन पंचीवाला साहब की टीम के कैप्टन जिमी दरबार। और मैं टॉस के लिए यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा शिवम पंचीवाला साहब को, इनके शुभ हाथों से ये टॉस को अंजाम दिया जाएगा। आइए शिवम जी, सबसे पहले तो हम आपके आभारी हैं, आपने जो हमें कोऑपरेशन किया है। आइए अब टॉस करेंगे। Heads is the call by Pradeep Patil, and heads it is. तो thank you so much शिवम भाई। पाटिल लगातार दूसरा टॉस जीता है, लेकिन अब अस्तित्व की लड़ाई है, और सामने जिम्मी जैसा तुम्हारा करीबी दोस्त। क्या जिम्मी आज दोस्ती निभाएगा या पाटिल आज दोस्ती नहीं निभाएगा?
अब वो तो देखते हैं, मैच है, कोई भी दोस्ती इधर वो नहीं करते, सब मैच जीतने के लिए खेलते हैं, तो उसी पे डिपेंड करेगा। अभी देखते हैं क्या होता है। हम लोग फील्डिंग फर्स्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। और रोटेशन के हिसाब से आपने प्लेइंग 11 शेयर कर दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो हमारे पास समय कम है। जिम्मी, रात का आखिरी मैच है, आपको लग रहा है ड्यू एक फैक्टर हो सकता है, और ऐसे में आपको बैटिंग पहले करनी है, तो वो एक थोड़ा सा आप एक एडवांटेज देख रहे हैं? ड्यू फैक्टर तो अभी थोड़ा दिखा नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि 85-90 प्लस रन कर सकते हैं, क्योंकि परी पाटिल की टीम ज़्यादा अच्छी है। क्या बात है, आप दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं भाई, आंखों में पानी आ गया इतना प्यार और भाईचारा देखकर। थैंक यू सो मच। तो डेल्टा एड्यूटेक विजेंद्र पाटिल साहब की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और पहले बल्लेबाजी करेगी यहाँ पर वीरेन भाई पंचीवाला की जय शिव 11। लेकिन ये मैच के लिए थोड़ा समय है। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको अजीज भाई बोडियत और राजेश भाई आचार्य के पास विवरण के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश पंड्या सर। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जहां देखिए 7 विकेट ये जो लिए गए हैं गुजरात में, 3 ऐसे गेंदबाज हैं दीप को मिलाकर। पहले रामचंद्रन ने विकेट लिया वाली नायका समाज में वाईसीसी क्रिकेट ग्राउंड कवाल के ऊपर। स्नेहल पटेल ने वांचड़ा में जो आंतर समाज क्रिकेट खेली गई वहां भी 7 विकेट लिए गए, और दीप ने यहाँ लिए गए एसटीपीएल में 7 विकेट। मतलब 3 ऐसे अकलौते गेंदबाज है साउथ गुजरात में जिन्होंने 7 विकेट लिए हैं। एक निर्णायक साझेदारी करना है यहाँ। देखिए बबिया 11 पिपलियत को सतीश भाई सुरती की ये टीम है। अखिलेश यादव गेंदबाजी के ऊपर, और इस बार स्वीप किया है बल्लेबाज ने गेंद गई वहां डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की। और जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए शाकिर काकोई की दिशा में, तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। पहले 83 रन बनाए। जो दर्शक देर से जुड़े हैं ये 70 लाइव यूट्यूब के ऊपर। पहला ओवर किया गया भावेश पवार की ओर से 6 रन 1 विकेट। अखिलेश को शामिल किया गया। अखिलेश का जो प्रदर्शन रहा था पिछले साल ताज प्रीमियर लीग का जो टूर्नामेंट्स खेला गया वहां से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किए गए। यहां से एक निर्णायक साझेदारी करना है बविया 11 पिपलियत के दोनों बल्लेबाजों के बीच। एक बहुत ही युवा बैलेंस टीम बनाई गई है सतीश भाई की ओर से और महिर पटेल की ओर से। देखिए पहला एक फाइटिंग स्कोर भी बनाया गया है 6 ओवर के निर्धारित मैच में। बहुत यादगार क्षण रहा है दीप पटेल के लिए, 7 विकेट लेने वाले। वैसे ये तीसरे गेंदबाज है साउथ गुजरात में दीप पटेल, उसके बाद स्नेहल पटेल और रामचंद्रन। और इस बार देखिए पुल जरूर किया था बल्लेबाज की ओर से, ये शॉट जरूर गिरी वहां पे शॉर्ट मिड विकेट के सन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक और वेट ट्रांसफर करके आप स्ट्रोक खेल सकते हैं। इंडियन एक गेंदबाजी थोड़े से नाखुश जरूर है, तो इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 8 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। राकेश कहार और प्रीतेश ये दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज, और पूरी निगाहें रहेगी राकेश कहार की बल्लेबाजी के ऊपर। लीडरशिप की जा रही है साकिर काकू की ओर से। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग शामिल किया जा रहा है बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब डीप मिड विकेट भी अब शामिल किया जा रहा है। पावर प्ले का ये दूसरा और अंतिम ओवर भी चल रहा है। शॉट फाइन लेग, शॉट लॉन्ग ऑन, ये ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट है। ऑफ साइड के क्षेत्र में शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, शॉट कवर पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर और शॉट मिड ऑफ। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, खूबसूरत फील्डिंग, वहां पे फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है अखिलेश की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। प्रीति से युवा बल्लेबाज है, पूरा चांस दिया जा रहा है सैलिन दरबार की ओर से बविया 11 पिपलोद के लिए कि बेहतर अच्छा परफॉर्मेंस करे टीम की ओर से।
और इस बार लंबा हिट लगाना चाह रहे थे, रोका गया वहां अखिलेश की ओर से। बहुत ही नई ओवर समाप्त किया जा रहा है। देखिए अखिलेश की ओर से इस ओवर में केवल 2 रन दिए गए अखिलेश की ओर, अखिलेश यादव की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर भव्य अभिनंदन पिपलोद का। अच्छी गेंदबाजी अखिलेश यादव, और इस ओवर में देखा जाए तो शिवम विश्वकर्मा का विकेट भी उन्होंने लिया, और खास करके किफायती गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, एक कंजूसी पना थोड़ा मुझे वहाँ पे दिखाई दिया इस प्रकार की गेंदबाजी। और खास करके जब 84 रन यहाँ पे बनाने हैं तो लाजमी है, और कप्तान जो इनके टीम के लीडर है साकिर काकू, वो भी अपने गेंदबाजों के साथ यही उम्मीद चाहेंगे कि शुरुआती दौर खास करके पहला हाफ जो 4 ओवर का है वो काफ़ी क्रूशल रहेगा। वहाँ पे अगर थोड़ा दबदबा बना लिया गया तो बाकी के 4 ओवर में थोड़ा दबाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी राकेश कहार बीच मैदान में मौजूद है। जब तक वो मौजूद है टीम की पूरी उम्मीदें मौजूद है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं वो सभी को मालूम है। उनका क्या रुतबा है, वो किस प्रकार का बल्लेबाज है, वो किसी भी परिस्थिति में अपनी नौस को होल्ड करना जानता है, और वो एक ऐसा क्रिकेटर है कि अपनी नौस को होल्ड करके वो मतलब कहते हैं ना, अपनी वो नौस को बिल्कुल लॉस नहीं करता, जस्ट बैट्स ऑन। वो खड़ा रहता है, अपने आप पे विश्वास रख के बस बल्ला चलाता है, बल्लेबाजी करता है, अपनी टीम की मतलब ज़रूरत क्या है उस प्रकार से। तो जैसे हरीश पंड्या सर ने भी कहा था ना कि ये जो मुकाबला है ना, भावेश पवार वर्सेस राकेश कहार, राहुल सेलर गेंदबाजी का भार संभालेंगे। आज सुबह बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। पहला मुकाबला जो उन्होंने जीता था आरजे ग्रुप देवत के सामने, जो 97 रन डिफेंड किए थे, 15 रनों से मुकाबले को जीता था, उसमें राहुल सेलर का रोल एक स्टेलर रोल रहा था इनका। और 2 ओवर के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे 84 रनों के जवाब में पावर प्ले की समाप्ति। इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, फील्डर वहां पे तैनात, और अच्छा पिकअप और थ्रो वहां पे अच्छी तरीके से। ये फील्डर में ये खासियत होनी चाहिए कि आपको कौन से टाइम पे गेंद को रिलीज करना है। थोड़ा दबाव मतलब दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बनाना चाहते थे, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 1-2 रन से यहाँ पे साझेदारी बनानी पड़ेगी, कमजोर गेंदों के ऊपर प्रहार तो करना पड़ेगा। और कप्तानी मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आप पिछले 1-2 सालों में साकिर काकू की कप्तानी देखोगे तो अपनी कप्तानी के दम पे अजीज भाई उन्होंने अपना एक अलग रेप्यूटेशन खड़ा किया है। फील्डिंग में तब्दीली जरूर होगी। मिड ऑन का फील्डर डीप में अब लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़ा होगा। आपको ऑफ साइड के ऊपर एक डीप में लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर खड़ा नजर आएगा। ऑफ साइड के ऊपर थर्डमैन के साथ कवर, एक्स्ट्रा कवर और स्वीपर बैकवर्ड पॉइंट जो डीप में खड़ा है। रिवर्स करने का प्रयास इसी शॉट के लिए। और प्रीतेश गोहिल ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जहां तक मुझे याद है जब वांसदा में दरबार समाज का टूर्नामेंट हुआ था, फाइनल में 18 गेंदों में 57 रनों की पारी और 3 विकेट के साथ मैन ऑफ द मैच हुए थे। और इससे पहले 2022 के अंत में जो कलवाड़ा डिजर्ट्स ग्राउंड के ऊपर फाइनल हुआ था, वहां पे भी मैन ऑफ द मैच हुए थे। तो प्रीतेश गोहिल एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मैं मानूंगा। एक अच्छी युवा प्रतिभा है, ऑलराउंडर है अच्छे। हालांकि आज गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन बल्लेबाजी में आज इनको कुछ रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे वो कठिन रहेगा काम, क्योंकि सामने क्वालिटी गेंदबाजी अखिलेश यादव, राहुल सेलर को अच्छे गेंदबाज मिलेंगे। फील्डिंग में लगातार तब्दीलियाँ ज़रूर होगी, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ये अमूमन फील्डर को थोड़ा ज़रूर बिजी रखता है, कप्तान को भी। इनसाइड आउट, हवा में ऊंची उड़ गई और एक हाथ से कैच लेने का प्रयास भावेश पवार के द्वारा। पहुंच भी गए थे, लेकिन वो जो, और ये राकेश कहार का कैच था। आप देखोगे कैच वहां पे हो सकता था एक हाथ से कैच लेने के प्रयास में, और वो अमूमन वो टीपॉट, डबल टीपॉट मूवमेंट वो देखते हैं गेंदबाज के, और लेकिन यहाँ पे नजर आया फील्डर के द्वारा। अफसोस जरूर जताया उन्होंने, सिर पे हाथ चले गए थे कि ये कैच मैंने किसका छोड़ा। ये राकेश कहार का कैच था, ये महंगा पड़ सकता है। पूरी तरीके से राहुल ने फंसा लिया था राकेश कहार को। नारायण के पास मौका जरूर था, वहां पे ये ड्रॉप चांस में गिना जाएगा।
12 रन, 2 सारिया 4 ओवर। कड़क है, बेहतर है, लेकिन हवा में ऊंची उड़ गई है गेंद, फलक में तो जान हलक में। फील्डर वहां पे तैनात थे, बड़ा विकेट, बड़ी मछली को जाल में फंसाया। पहले नारायण ने भले कैच छोड़ा, लेकिन राहुल सेलर ने बिल्कुल भी वो अफसोस नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं वापसी करूंगा और ऐसी तगड़ी वापसी करूंगा कि राकेश कहर को चलता किया। यहां पे एक बड़ा विकेट, ये काफी हद तक परेशानी में डालने वाला ये कैच हो सकता है। भव्य 11 थोड़ी सी यहां पे इनकी नाव बीच मझधार में फंसी है। 84 रन जहां पे बनाने थे, शायद ही सोचा होगा कि पिछले मैच का हीरो जो रहा था राकेश कहर, जिन्होंने 62 रनों की पारी खेली थी, इतने कम स्कोर में टीम का दामन छोड़ के जाएगा। 7 गेंदें 9 रन के ऊपर मात्र। राकेश कहर हैज टू डिपार्ट। यहां से मैच फंसा है, बल्कि ये मैच बना है। ये दोनों टीमों के लिए ये देखा जाए तो मैच इनएविटेबल है, जितना इंपेरेटिव है, क्योंकि ये सेमीफाइनल का रास्ता क्लियर कर देगा। मतलब हारने वाली टीम फिर उसके बाद दिक्कत ऐसी पैदा होगी जिस भाई के फिर वो डू और डाई मुकाबला बन जाएगा। और ऐसे प्रेशर वाले सिचुएशन में राहुल सेलर ने जो गेंदबाजी की, आप देख सकते हैं 70-70 के इक्विपमेंट्स, बैग्स वहाँ पे, कलरफुल बैग्स, और ब्रांड एम्बेसडर करण अंबाला 70-70 बैट्स के साथ। खूबसूरत बैट है वो, काफ़ी बढ़िया ब्लेड, अच्छा फ्लो है खूब। और एक तरीके से अच्छी क्रिकेट आपको खेलनी है तो 70-70 बैट्स काफ़ी यूजफुल है। तो यहाँ पे बड़ा झटका, और दिवेश ने बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में राकेश कहर के आउट होने के बाद अब मैच में यहां पे काफी बड़ा टर्न हुआ है, काफी बड़ा मैच में मोड़ आया है। जयसी 11 की टीम यहां पे रुक करती हुई मैनेजर से स्वप्नेश पटेल और उनके साथ पवन शर्मा जी। लो फुल टॉस गेंद, बिल्कुल जमीन के समान अंतर, कॉपी बुक स्टाइल में खेला। शॉर्ट फील्डर वहां पे मुस्तफा पठान, जब तक पिक करेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन आसानी से, लेकिन अच्छा पिक पर थ्रो। और यहां से अजीज भाई 3 ओवर समाप्त, 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये काफी वाइटल ओवर राहुल सेलार का, जिन्होंने मात्र दिए कितने 5 रन, और सबसे बड़ा विकेट किसका रहा? राकेश कहर का। क्या कहेंगे, 13 रन 2 विकेट जीतने के लिए अभी भी जरूरत है 71 71 रनों की। गेंदें कितनी बची है? 30। क्या कहेंगे, मैच फंसा है, मैच बनेगा, कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा? देखिए, बहुत देखभाल कर पारियां खेलना है भव्य 11 पपलोद के जो भी बल्लेबाज बचे हैं, क्योंकि 14.20 है वहाँ पे। मतलब प्रति ओवर 14 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जितना आसान टारगेट इतना मुश्किल टारगेट, और 200-250 का स्ट्राइक रेट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जो पहला मैच रहा था वहाँ राहुल सेलर ने 2 ओवर में 6 रन 1 विकेट, और उसी फॉर्म को जारी रखा है। देखिए, युवा बल्लेबाजों को शामिल किया जा रहा है। भावेश पवार और शाकिर काकू की ओर से, ये दोनों बहुत ही लेजेंडरी कप्तान भी है और इंडिया या टेनिस क्रिकेट में। भावेश पवार फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, स्लॉग सी स्ट्रोक के लिए। सर, वो पीले कलर का ही जूता पहनते हैं, उससे आप पहचान सकते हैं भावेश पवार को। और इस बार पंच किया है बल्लेबाज ने, खूबसूरत एक क्या कैच लिया गया वहां शॉर्ट कवर के सन के ऊपर। खूबसूरत कैच लिया गया शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर से। 13 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। 70-70 एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंस, सूरत प्रीमियर लीग सीजन 1, विजय पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमराड़ के ऊपर। टेक्निकल टीम में सतीश यादव सर, मिस्टर आशीष मोरे,
पूरी मेहनत की गई। देखिए गांगेश भाई वालवी सर की ओर से, प्रकाश भाई राठौड़ की ओर से, नीलेश भाई की ओर से। यहाँ एक आकर्षक पारी आप देखिए अब खेलना है। स्कोर है 13 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चला है। पहले 83 रन बनाए गए 8 ओवर के निर्धारित मैच में, जिसमें 7 बहुमूल्य विकेट लिए गए दीप पटेल की ओर से। अभी तक की कारगर कप्तानी की जा रही है साकिर काकू की ओर से और भावेश पवार की ओर से। अखिलेश अपने कोटे के ये दूसरे ओवर में। फील्ड में देखे इस प्रकार अब शामिल की जा रही है शाकिर काकू की ओर से। एक डीप लॉन्गर बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप पॉइंट, शॉर्ट गली और शॉर्ट थर्ड में ऑफ साइड की फील्डिंग की सजावट की जा रही है अखिलेश यादव की ओर से। इस बार स्वीप जरूर किया गया था, नो मैन लाइंस के ऊपर गेंद गिरी, वहां जब तक गेंद को जाकर फील किया जाए वहां अखिलेश यादव की ओर से शॉर्ट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर एक गति प्रदान की गई। इस बार देखे अखिलेश यादव की ओर से। ये 3 लंबे जो कद के खिलाड़ी है ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में, उसमें अजीत मोहित है, अखिलेश यादव और साकिर काकू, ये सबसे लंबे कद के भी, और अंकुर सिंह और जयवीर पंखुटा। पूर्ण क्षण चले, पहले 83 रन बनाए गए, जवाब में बहुत ही सफल कप्तानी अब तक की जा रही है। मैच एकदम देखिए बैलेंस चल रहा है। छोटी छोटी पारियां यहाँ निर्माण करना है भव्य 11 पिपलोद के लिए अगर इस मैच में वापसी करना है। एक शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। और इस बार देखिए दिल स्कूप स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई पहली स्लिप के सन के ऊपर। सूरत गेंदबाजी वहां पे अखिलेश यादव की ओर से। 13 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर भैया 11 पिपलोद का पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। अब शैलीन दरबार आए है बल्लेबाजी के ऊपर। भव्य 11 पिपलोद के कप्तान शैलीन दरबार अपने बल्लेबाज के रूप में। देखिए प्रदीप पाटिल ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया। डेल्टा एड्यूटेक की ओर से, डेल्टा एड्यूकेट और जयसी के बीच का इसके बाद का छठा मैच। दोनों दोस्त आमने सामने, मतलब एक दूसरे की भली बाती, अच्छा या बुरा या पूरी पहचानते हैं। क्या कप्तानी देखिए की जा रही है शाकिर काकू की ओर से। पहले नूर भाई ने और हरीश पंड्या सर ने बताया था कि 75 और 80 का बीच का जो भी स्कोर रहेगा वो बहुत ही फाइटिंग स्कोर है। स्मित बटार एक सपोर्टर भी है, डीजे स्मित बटार। कि जो फील्ड चाहिए वो फील्ड दी जा रही है शाकिर काकू की ओर से। अखिलेश ने फील्ड इस प्रकार एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड्स करेगा और शॉर्ट फाइन लेग। हर हाथों से ग्लास स्ट्रोक खेला गया शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए, अंडर आर्म थ्रो दिया जाए शाकिर काकू की दिशा में। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ भव्य 11 पिपलोद 11 का 14 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। प्रीतेश गोहिल के ऊपर काफी निगाह है। एक बहुत ही संघर्षपूर्ण पारी खेल रहे प्रीतेश गोहिल। 5 गेंद खेले, 5 में 2 रन बनाए जा रहे हैं टीम की ओर से। दरबार समाज के बहुत ही अग्रिम पंक्ति के ऑलराउंडर्स है।
और इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला और जब तक गेंद को आगे आकर फील्ड किया जाए भावेश पवार की ओर से और ओवर आर्म थ्रो दिया जाए शाकिर काकू की दिशा में, तब तक 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ भैया 11 पिपलोद 11 का 15 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। विस्फोटक पारी, एक मतलब एग्रेसिव पारी अब खेलना है सेठी दरबार को। टीम के कप्तान बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ पारी खेल रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 4 रन और 3 विकेट और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर भैया 11 पिपलोद का। 24 गेंदों के ऊपर 69 रन चाहिए। देखिए अच्छी पहले पारी खेली गई सालोम फाइटर्स की ओर से, उनके जो फ्रेंचाइजी ओनर्स है ऑगस्टिन पोंजरा सर, भैया 11 के टीम ओनर से सतीश भाई सुरती। तो यहाँ पे 70-70 एनडी स्पॉट्स सूरत प्रेजेंस STPL सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग ऑक्शन बेस ये पहला टूर्नामेंट जहाँ पे सूरत डिस्ट्रिक्ट के सभी क्रिकेटर्स को समाविष्ट किया गया, उनके साथ ऑल इंडिया आइकन क्रिकेटर को भी यहाँ पे शामिल किया गया। एक बेहतरीन मुहिम यहाँ पे 70-70 एनडी स्पॉट्स के द्वारा। और इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो 8 टीमों ने जहाँ पे प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। हर टीमों को अलग अलग 2 ग्रुपों में बांटा गया। आज ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों ग्रुप के मुकाबले यहाँ पे खेले जा रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में हम एम्पायर के तौर पे BDCA के हाईली क्वालिफाइड एम्पायर अर्जुन टंडेल सर, गौरव देसाई सर और आसिफ प्रानिया आप देख सकते हैं। 70-70 एनडी स्पॉट्स की ये जो शॉप है जो अडाजन में आनंद महल रोड के ऊपर, अल्पेश भाई घंटीवाला सर हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय आपने जो अपना यहाँ पे निकाला। और खत्री समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती है और मैं महेश भाई गिला उनसे गुजारिश करूँगा कि मोमेंटो वहाँ पे उनको दिया जाए, उनका सम्मान किया जाए। अल्पेश भाई घंटीवाला हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। महेश भाई गिल्ला उनके द्वारा उनको मोमेंटो दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। और एक अच्छी बात हमारे लिए प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे क्रिकेटर्स को, मैनेजमेंट को साथ सहकार यहाँ पे उनके द्वारा दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अल्पेश भाई। तो यहाँ पे 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 15 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अखिलेश यादव का बढ़िया स्पेल, 2 ओवर 4 रन दिए और 3 विकेट, एक बहुत ही बढ़िया स्पेल। इकोनॉमी अगर आप देखोगे मात्र 2 की, 8 ओवर के मुकाबले में अजीज भाई इतनी टेस्ट मैच वाली इकोनॉमी, क्या गेंदबाजी है। राहुल सलार गेंदबाज के तौर पे और यहाँ पे अल्पेश सर हमारे बीच, खत्री समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती अल्पेश भाई घंटीवाला, उनका स्वागत किया जा रहा है द लेजेंडरी क्रिकेटर महेश भाई गिला के द्वारा। और सॉल वहां पे दी जा रही है और मोमेंटो देके इनका सम्मान किया जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नो बॉल इसी बीच करार दी गई अंपायर के द्वारा। जी मोमेंटम दिया जा रहा है महेश भाई गिला की ओर से अल्पेश भाई घंटीवाला, जो खत्री समाज के एक अग्रणी कार्यकर्ता है, एक काफी बड़ी हस्ती। नो बॉल थी पिछली गेंद, तो यहाँ पे बाजुए खोलने का मौका। ठीक तरीके से गेंद कनेक्ट नहीं हुई, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद हाफ वाली थी नहीं कि ड्राइव उसे कर पाए, लेकिन बाहरी किनारा लेके थर्डमैन की दिशा में कोई रन नहीं और फंसी हुई है यहाँ पे भव्य 11 की टीम। 16 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पहले हमें दीप की घातक गेंदबाजी दिखी, लेकिन उसके बाद जब 84 रन डिफेंड करने थे तो सेलम फाइटर्स के गेंदबाजों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है, मानना पड़ेगा। इस बार भी वो मिस टाइम शॉट, गेंदें लग नहीं रही, बल्ले पे आ नहीं रही। प्रीतेश गोहिल अच्छे क्रिकेटर है लेकिन परिस्थितियां जब कठिन हो, उस परिस्थिति में आप कैसे खेलते हैं तब आपका एक बड़ा नाम होता है। वहां पे आपकी बल्लेबाजी
का हुनर आपको दिखाने की जरूरत रहती है। वैसे भी ये प्लेटफॉर्म युवा प्रतिभाओं के लिए रखा गया है, तो प्रीतेश गोहिल के पास मौका है। सामने एक्सपीरियंस क्रिकेटर शैलिन दरबार है, लेकिन मानना पड़ेगा राहुल सेलार कमाल की गेंदबाजी में आज दिन रहा है राहुल सेलार का। 17 रन 4 विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद मेरे ख्याल से दोबारा डालनी पड़ेगी जी। वाइड का इशारा अंपायर वहां पे जो खड़े हैं आसिफ प्राणिया सर, स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पे अर्जुन टंडेल सर, थर्ड अंपायर के तौर पे हमारे साथ बैठे हैं कॉम बॉक्स में मौजूद है गौरव भाई देसाई, कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद अजीज बोड़ियात सर, हरीश पंड्या सर और नूर मलिक सर। शॉट अच्छा है, ये इनका फेवरेट शॉट है और ये फेवरेट शॉट अपना जब खेलते हैं, वहां पे भले फील्डर मौजूद थे, रन एक ही आएगा, लेकिन वो आत्मविश्वास मिलता है बल्लेबाज को। सब बल्लेबाजों के अपने कुछ फेवरेट शॉट होते हैं। युवराज सिंह जब आते थे, अगर उनका पंच लग गया ना पहले शुरुआत में, फिर उसके बाद वो लंबी पारी खेलते थे। सचिन तेंदुलकर का स्ट्रेट ड्राइव शुरू हो गया ना, तो वो लंबी पारी खेलते थे। मतलब अपने खुद ट्रेडमार्क शॉट होते हैं सब बल्लेबाजों के। मिस टाइम शॉट, हवा में ऊंची उठ गई, दबाव था डॉट बॉल का, उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाए। प्रीतेश गोहिल को वापस आना पड़ेगा। एक संघर्षपूर्ण पारी का अंत राहुल सेलार ने किया और क्या कप्तानी यहां पे गेंदबाजों को जो रोटेट किया है वो कमाल है, लाजवाब है। ये कप्तान नहीं, ये लीडर है। बहुत ही बढ़िया कप्तानी और अच्छी गेंदबाजी राहुल सेलार के द्वारा। विश्वास जो होता है ना कप्तान का, वो ऐसे जीता जाता है। 19 रन और आधी टीम डगआउट में जा चुकी है। मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि ये जो है ना अब जो टारगेट 8 ओवर में, वैसे अजीज भाई 84-84 का टारगेट उतना बड़ा माना नहीं जाता, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी हो ना तो वो टारगेट है ना पहाड़ जैसा लगने लगता है। अब तो देखा जाए वो थोड़ा लेबोरियस टारगेट मुझे नजर आ रहा है, कठिन थोड़ा स्टिफ टारगेट बन चुका है। ये देख सकते हैं आसान सॉफ्ट डिसमिसल अपने ही फॉलो थ्रू में कॉट एंड बॉल राहुल सेलार। सुबह से ही राहुल सेलार ने है ना एक संदेश भेजा था कि आज गेंदबाजी में मेरा दिन रहने वाला है। और हरीश सर ने जो दीप को पूछा था, वही बात इनको भी पूछनी चाहिए कि सुबह में आपने किसके दर्शन किए थे। 1.4 ओवर अपने स्पेल के 9 रन मात्र और 2 सफलताएं। नया बल्लेबाज जस्टिन, ये भी एक अच्छी युवा प्रतिभा है जस्टिन। नो बॉल का इशारा, प्लेइंग एरिया से काफी बाहर, तो फ्री हिट आने वाली गेंद के ऊपर बाजुएं खोलने का मौका शुरुआत में ही मिलेगा, लेकिन यहां से है ना परिस्थितियां काफी बिगड़ चुकी है। अब देखना होगा किस प्रकार से इसको सुधारेंगे, क्योंकि एज वहां भाई जी नहीं, लेकिन वो फ्री हिट थी वहां पे और फ्री हिट के ऊपर रन आउट बन सकता है। वो बिल्कुल सतर्कता नहीं नजर आई बल्लेबाज में, वो शायद उनको पता ही नहीं था कि फ्री हिट, ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि बल्लेबाज को पता ही ना हो कि ये फ्री हिट है, लेकिन ये हुआ है STPL में, सब पॉसिबल हो रहा है। एज लगा था और रन आउट, ये विकेट कंसीडर होता है फ्री हिट के ऊपर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, दूर रखी थी, किनारा लगा था, लेकिन कैच मायने नहीं रखता फ्री हिट के ऊपर। साकिर काकू ने, और फिसले भी थे वहां पे क्योंकि थोड़ी ओस लग रही है। और 20 रन 6 विकेट के नुकसान पे, हालात बद से बदतर वहां पे होते हुए, हालात काफी खराब यहाँ पे। भव्य 11 उम्मीद नहीं की होगी कि जिस प्रकार से भव्य 11 ने अपना पहला मुकाबला जो जीता था, 116 रन बनाए थे, जो बैटिंग ओरिएंटेड टीम हाईएस्ट टोटल टूर्नामेंट का जिन्होंने रखा था, वो दूसरी मैच में 20 रन इतने कम स्कोर के ऊपर। ये क्रिकेट में है, ये इसे कहते हैं क्रिकेट। लोग कहते हैं ना क्रिकेट क्या है, क्यों आप इतना देखते हो, क्या आपको इंटरेस्ट है, ये है मैदान पे आइए, एक मैच में अर्श पे, दूसरे मैच में फर्श पे, ये इन्हीं है। लेकिन ये टीम है ना फंसी हुई है पूरी तरीके से। इस ओवर की आखिरी गेंद 20 रन 6 विकेट के नुकसान पे। ऑफ स्टंप के बाहर खड़े खड़े खेलने का प्रयास और मिलेगा चौका। कॉन्फिडेंस जरूर दिलाएगा, लेकिन ये स्कोर इतना पर्याप्त नहीं होगा, ये चौका पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इस 4 रन की मदद से आपको नजर आएंगे 24 रन 6 विकेट के नुकसान पे। क्योंकि 18 गेंदों में 60 रनों की जरूरत, मतलब प्रति ओवर आपको कितने चाहिए, 20 रन। और राहुल सेलार का स्पेल देख लीजिए, 2 ओवर
14 रन और 3 विकेट। तो इस पारी को नेस्तो नाबूद करने में जो भूमिका निभाई है, स्टेलर रोल जिसे हम कहेंगे, राहुल सेलर, अखिलेश यादव, दोनों ने पूरी तरीके से भव्य 11 को बैकफुट पे रख दिया। अजीज भाई क्या कहेंगे यहाँ पे अब? तो 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैन ऑफ द मैच के लिए देखिए वीरेन भाई पंची अल्लाह की ओर से इनाम है। इसी पर जो मैच चल रहा है उसमें 1000 राहुल सेलर को टी शर्ट भी दिया जाएगा गांगेश भाई वाल्वी के हाथों से, जो अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है टीम सालम फाइटर्स की ओर से। सालम फाइटर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर से ऑगस्टिन पोंजरा सर। इस बार देखिए एंगलिंग गेंदबाजी की जा रही है भावेश पवार की ओर से। गेंद गई शॉट मिड विकेट के सन के ऊपर, जब तक गेंद को फील नारायण गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन के तौर के ऊपर देखिए ये आजमाई सब की जा रही है भावेश पवार की ओर से और साकिर काकू की ओर से। नारायण को शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से, दूर वाले छोड़ से। पारी का 6वां ओवर चला है, स्कोर है 25 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार स्वीप जरूर किया गया था बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को हाफ पे फील किया जाए भावेश पवार की ओर से और ओवर आर्म थ्रो दिया जाए शाकिर की दिशा में, तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ भव्य 11 पिपलोद 11 का 26 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 84 रनों के जवाब में। पहले 83 रन बनाए गए निर्धारित 8 ओवर की मैच में। इस बार फिर से स्वीप किया है बल्लेबाज ने। गेंद गई फिर से भावेश पवार की दिशा में शॉर्ट मिड विकेट के सन के ऊपर। 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। पारी का ये 6वां ओवर चल रहा है। पहले ओवर में केवल 6 रन दिए गए थे भावेश पवार की ओर से, इसकी 6 रन। अच्छी गेंदबाजी की गई भावेश पवार की ओर से सालोम फाइटर्स के लिए। दूसरी ओवर में केवल 2 रन दिए गए थे अखिलेश यादव की ओर से। काबिलियत को पुरवार करना है बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को। और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला, जब तक गेंद को सफाई के साथ फील किया जाए अखिलेश यादव की ओर से। मिस फील्डिंग 4 रन का इस बीच सर अंपायर अर्जुन टंडेल सर की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 31। अमोल बल्लेबाजी के ऊपर। इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला मुस्तफा पठान फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट कवर के सन के ऊपर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। पारी का ये 6वां ओवर चल रहा है 84 रनों के जवाब में। पहले 83 रन बनाए गए सालोम फाइटर्स की ओर से। जवाब में बहुत ही सफल कप्तानी की जा रही है साकिर काकू और भावेश पवार की ओर से। इस बार आगे का स्ट्रोक को खेला फॉलो थ्रू महत्वपूर्ण से, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। तो 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदे और 51 रन। 12 गेंदों में 51 रनों की दरकार है हर ओवर में, मतलब 25.5 का औसत। और ये डिफरेंस आप देख लीजिए, करंट रन रेट 5.50 और रिक्वायर है 25.50। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। और 71 फॉर 4 और इसके अब कंपैरिजन देखोगे 33 रन 6 विकेट के नुकसान पे। ये बहुत बड़ा ये मार्जिन, ये जो है ना, ये 70 के जो टेक्निकल टीम है उनके द्वारा ये आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया वर्क उनके द्वारा। और इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट अपने घर पे, अपने मोबाइल सेट के ऊपर, स्मार्ट टीवी के ऊपर, डेस्कटॉप लैपटॉप पे निहारिए। 70 स्पॉट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
शॉट ये अच्छा है इनका, ये शॉट बहुत ही बढ़िया ऑन द राइज शॉट, इससे राइजिंग शॉट भी कहा जाना चाहिए। बोले फ्लैट गया है लेकिन ये जो शॉट खेला है इन्होंने कमाल का है। ये थोड़ी बैटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे अगर इस प्रकार के शॉट लगते रहे तो क्रिकेट है ना अनिश्चितताओं का खेल है। अजीज भाई आपका एक्सपीरियंस आपको पता है और शैलेंद्र दरबार ने कारनामा इतिहास में क्या किया है सबको मालूम है। ये चौका खूबसूरत लगा मुझे। कड़क है, स्टैंड एंड डिलीवर है, ऊंची है, लंबाई देखनी पड़ेगी। जी हां, जितनी पर्याप्त दूरी पर्याप्त ऊंचाई मिलनी थी वो सब कुछ मिला और शैलेंद्र दरबार नाउ ऑन फायर। पहले चौका कवर ड्राइव के स्वरूप में कॉपी बुक स्टाइल में, उसके बाद बियॉन्ड द कॉपी बुक लेंथ को पढ़ा, थोड़ा हटे रूम बनाया और बल्ले के निचले हिस्से पे एक कड़क मैक्सिमम आया। इस बार थोड़ा जल्दी खेल गए, बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी भवेश पवार के द्वारा और अच्छी सोच, अच्छी वापसी। ये जो शॉट है ना, ये जो अंतिम ओवर में ये जो बल्लेबाजी करे शैलेंद्र दरबार, ये थोड़ा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएगा। अगले मैच के लिए आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहेंगे। थोड़ा जल्दी खेले, ये चेंज ऑफ पेस, इनके पास सब कलाबाजी है। इनको वो सब कटर गेंदें आती है, वो अंदर भी लाते हैं, बाहर भी डाल देते हैं और तेज गति से कई बार वो बीट भी कर देते हैं। और कई बार तो मुझे वो इनकी वो वसीम अकरम वाली इन डकर गेंदें भी दिखी है, लेट स्विंग वाली। ये भी अच्छी गेंद थी। चेंज ऑफ पेस हैज बीन वर्क हियर, बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज ऑफ पेस, यहाँ पे गति में परिवर्तन। लेकिन अजीज भाई ये मुकाबला कुछ भी कहे दीप पटेल के लिए याद किया जाएगा। 75 रन थे जब 6 ओवर थी, 75 रन थे सलम फाइटर्स के, लेकिन 83 के ऊपर रोक दिया। और वो जो गेंदबाजी उनकी रही, जो उन्होंने 7 विकेट, खास करके आखिरी 5 गेंदों में 5 विकेट, वो काबिल तारीफ प्रदर्शन और बिल्कुल एक तरीके से नज़रिया बदल के रख दिया। वो कहते हैं ना कि नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं और सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। उसी प्रकार की कहानी कुछ उनकी रही। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। तो जो मैं बात कह रहा था, जो बात मैंने अधूरी बीच में छोड़ी कि जे कहते हैं नज़रिया बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, किनारे बदलो दिशा बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये दीप ने एग्जाम्पल सेट किया। अब आखिरी ओवर में नारायण आपको नजर आएंगे और अजीत सर 44 रन 6 विकेट के नुकसान पे, क्या महज औपचारिकता? एलिस साहब गेंदबाजी के ऊपर देखे पारी के अंतिम ओवर में 6 गेंदों के ऊपर 44 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मतलब 44 बनाएंगे और 44 रन चाहिए, 40 रन चाहिए। इस बार देखे हुक किया गया है और गेंद जा रही है एक टप्पा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस मैच के बाद देखे लिंक चेंज भी हो जाएगी। ये आशीष भाई मोरे और सतीश भाई यादव का भी कहना है। तो अब बड़ी मात्रा में 70 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं कि आपको लिंक तुरंत मिल जाएगी। इसके जो फाउंडर है जनाब तारिफ सैयद सर। ये फाइनल एक क्षेत्र में फिर से गेंद जा रही है और अब जब तक इनको फील किया जाए, अंडर आर्म थ्रो दिया जाए शाकिर की दिशा में। स्कोर रुका हुआ 49 पारी का ये 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। 4 गेंदें, 4 में 35 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। राउंड सेलर ने अच्छी गेंदबाजी की, अखिलेश यादव ने अच्छी गेंदबाजी की सालोम फाइटर्स के लिए। इस बार देखिए पुल जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट के सन के ऊपर हाफ वे, जब तक गेंद को आकर फील किया जाए फील्डर की ओर से। 3 गेंदों के ऊपर अब 34 रन चाहिए। स्कोर है 50 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। एडमायर कैप्टनशिप बाय भावेश पवार एंड शाकिर काकू फॉर टीम सालोम फाइटर्स 11।
इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई शॉट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर, कोई रन नहीं वहां पे। सूरत वापसी देखे, वहां पे पहले 83 रन बनाए गए। जवाब में बहुत ही सफल गेंदबाजी वहां राहुल सेलर की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से, नारायण की ओर से और भावेश पवार की ओर से। अब एडिस को भी शामिल किया जा रहा है पारी के अंतिम ओवर में। इस बार देखिए जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया, गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए भावेश पवार की ओर से तब तक 1 रन। एक औपचारिक सब बच रही है। देखे इस मैच में सालोम फाइटर जीत की और अग्रसर होने जा रही है। पहला मैच जीता उन्होंने 16 रन से, और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। तो इस प्रकार ये दूसरी लगातार जीत इसको कहा जाना चाहिए, पूरा श्रेय इसको जा रहा है। देखे गेंदबाजी बल्लेबाजी अच्छी रही है, तब तक एक बहुत बड़ा मैच जीता है सालोम फाइटर्स ने। 32 रन से इस मैच को जीता है सालोम फाइटर्स 11 ने। अब मैन ऑफ द मैच के लिए जुड़ जाएंगे मेरे खास दोस्त हरीश पंड्या सर, और मैन ऑफ द मैच के लिए वीरेन भाई पंछीवाला की ओर से 1000 नकद भी दिए जाएंगे। इस मैच से उनकी घोषणा भी की गई थी, ये कहा गया था वहाँ पे हरीश पंड्या सर की ओर से।